Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। नष्टप्रयासभद्रेषु नित्यं भगवतो सेवाय भगवतोत्तमे श्लोके भक्तिर्भवति नास्तिके। सदा सिद्ध्या श्रीमद्भगवती कथा श्रवणमात्रेण परिष्ठितं समस्येत्। तो आज हम लोग जो चर्चा करने के लिए जाएंगे, तो आज फर्स्ट कैंटो 8 चैप्टर क्या है 35 नंबर श्लोक में हम लोग देखेंगे चर्चा करने के लिए। तो श्लोका 35 भवे अस्मिन् क्लेशामन्ननम्। आप कृपा करके रिपीट करें प्लीज। हरे कृष्ण। भवे अस्मिन् क्लेशामन्ननम् अविद्या काम कर्मभिः। अविद्या काम कर्मभिः श्रवण स्मरण अर्हानि। श्रवण स्मरण अर्हानि करिष्यन् इति केचन। करिष्यान इति केचन। भवे अस्मिन् क्लेशामन्ननम् अविद्या काम कर्मभिः श्रवण स्मरण अर्हानि करिष्यन् इति केचन। अनुवाद and तात्पर्य by His Divine Esi Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Jai Srila Prabhupada. Translation. And yet others say that you appeared for the sake of rejuvenating the devotional service of hearing, remembering, worshipping, and so on, in order that the conditioned soul suffering from material pangs might take advantage and gain liberation purpose. In the Srimad Bhagavad Gita, the Lord asserts that He appears in every millennium just to re-establish the way of religion. The way of religion is made by the Supreme Lord. No one can manufacture a new path of religion, as is the fashion for certain ambitious persons. The factual way of religion is to accept the Lord as the supreme authority and thus render service unto Him in spontaneous love. A living being cannot help but render services because he is constitutionally made for that purpose. The only function of the living being is to render service to the Lord. The Lord is great and living beings are subordinated to Him. Therefore, the duty of the living being is just to serve Him only. Unfortunately, the illusioned living beings, out of misunderstanding only, become servant of the senses by material desire. This desire is called avidya or nescience. And out of such desire, the living being makes different plans for material enjoyment centered about a perverted sex life. He therefore becomes entangled in the chain of birth and death by transmigrating into different bodies on different planets under the direction of the Supreme Lord. Unless, therefore, one is beyond the boundary of this nation,
one cannot get free from the threefold miseries of material life. That is law of nature. The Lord, however, out of his causeless mercy, because he is more merciful to the suffering living being than they can accept, appears before them and renovates the principle of devotional services, compromised of hearing, chanting, remembering, serving, worshipping, praying, cooperating, and surrendering unto Him. Adoption of all the above mentioned items or any one of them can help a conditioned soul get out of the tangle of nations and thus become liberated from all material suffering created by the living being illusioned by the external energy. This particular type of mercy is bestowed upon the living being by the Lord in the form of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Hare Krishna. Om Agarati Nanda Shivananda Shri. Hare Krishna. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Hare Krishna. तो आज जो हम लोग चर्चा करने 35 श्लोक में यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो कुंती देवी यहाँ पे क्या बता रहा है। तो हम लोग पिछले कई दिनों से कुंती देवी का स्तुति चर्चा कर रहा है। तो आज देखेंगे कुंती देवी यहाँ पे क्या कह रहा है। तो कुंती देवी यहाँ पे बता रहा है भगवान जो है, भगवान यहाँ पे स्मरण और भगवान यहाँ पे स्मरण, श्रवण, स्मरण, अर्चन जो आदि विधि है उसको जागृत करने के लिए प्रकट हुआ है। तो क्योंकि भौतिक कष्ट में जो जीवात्मा, जो हम लोग जो जीवात्मा जो भोग रहा है यहाँ पे, जो हमारा जो यहाँ पे पीड़ित में हम लोग जो भोग रहा है ये भौतिक जगत में, भौतिक जीवन सब लोग भोग रहा है, तो हम लोग जो यहाँ पे भोग रहा है तो ये क्या है, तो ये भगवान का द्वारा जो स्मरण, जो भगवान जो हम लोग को दिया हुआ है श्रवण, स्मरण, वो अर्चन, तो उसको मतलब भगवान मतलब उद्धार हो, मतलब वो जो श्रवण कीर्तन स्मरण करके जो उद्धार हो सकता है, इसलिए तो भगवान यहाँ पे मतलब भगवान का तो दिया मतलब दिया हुआ जो श्रवण कीर्तन स्मरण वो सुन के अगर जीव अगर उद्धार हो सकते हैं, तो इसलिए भगवान हमारा क्या है, भगवान यहाँ पे मतलब ये आता है, मतलब भगवान अपना खुद को प्रकट करता है। तो भगवत गीता में स्पष्ट रूप से भगवान कहती है, जैसे जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय अधर्मस्य तदात्मनोऽहम्। तो धर्म स्थापन करने के लिए भगवान यहाँ पे अवधारित होता है। भगवान यहाँ पे धर्म संस्थापन करने के लिए भगवान यहाँ पे अवधारित होता है, क्योंकि जैसे कोई भी मनुष्य मतलब धर्म स्थापन कर नहीं सकता है, क्योंकि जो आजकल क्या है, हम लोग अगर देखेंगे धर्म आजकल धर्म बनाना आजकल एक फैशन हो गया है। आजकल हम लोग देखेंगे तो भारत में बहुत से सारे गुरु है जो अपना खुद को भगवान साबित करने लगता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है जो धर्म जो बनाने वाला है उसको हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। तो परफेक्ट कौन है? परफेक्ट एकमात्र कौन होता है? एक भगवान है। उनको अलावा ये कोई परफेक्ट नहीं है, ये दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। तो एक्चुअली जो हमारा एक्चुअली प्रकृत धर्म क्या है,
तो हमारा प्रकृत धर्म वही होता है, भगवान को परम ईश्वर मान के प्रेम से है उनको सेवा करना, तो वही है हमारा प्रकृत धर्म। तो हो सकता है धर्म को कोई अलग अलग से नाम दे, लेकिन क्या है वास्तविक में धर्म का मतलब क्या है, जो वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड, हम लोग भगवान का नित्य दास है, जीवेरो स्वरूप है कृष्णरो नित्य दास। तो यहाँ पे दूसरा जैसे है हमारा, जैसे यहाँ पे भगवत गीता में बताया है, मामे मांस जीवलोके जीवभूत सनातन मनो षष्ठांद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति है। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, ये जड़ जगत का जो बद्ध जीव हमारा अंश है, मतलब अंश है। तो ये जो है प्रकृति का बंधन में, जड़ प्रकृति का बंधन में आबद्ध होके यहाँ पे बहुत मेहनत करता है। मतलब हम लोग कोई एक टाइम पे तो हमारा भगवान के साथ ही था, तो हमारा जो डिजायर था, कामना वासना था, वो उसी लिए हम लोग यहाँ पे आ गया। आज ये जड़ भौतिक जगत में जन्म लिया, क्योंकि हमारा ये जो जड़ वासना है भौतिक जगत का, वो मतलब पूर्ण करने के लिए हम यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे देखें हम लोग 84 लाख जोनी भोगते भोगते ये भौतिक जगत में जन्म, हमारा जन्म हुआ है भगवान का कृपा से। तो 84 लाख जन्म हम भोगते रहते हैं, तो उसके बाद भी भोगते रहते हैं, लेकिन भगवान जब हमारा कृपा करते हैं तब हमारा ये मनुष्य जन्म मिलता है। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है भगवान का सेवा करना। तो हमारा जब ये भौतिक जगत पे जन्म हुआ है, तो हमको किसी ना किसी को तो सेवा करना ही चाहिए, है सेवा करना ही पड़ेगा। कोई पिता माता का सेवा, समाज का सेवा, या नहीं तो ऑफिस में कोई बॉस का सेवा करना पड़ेगा। अगर हमको सेवा ही करना है तो क्यों ना हम भगवान को सेवा करो। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये सेवा का बारे में शिला प्रभुपाद क्या कह रहा है। तो यहाँ पे जो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, भविष्य में मतलब इट मीन्स द मेटेरियल वर्ल्ड कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है। भविष्य मीन क्लेशो माननम, मतलब एनीवन हु इज विद इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड मस्ट वर्क। ये भौतिक जगत में हम लोग कोई भी है, हम लोग को तो काम करना ही पड़ेगा। दिस इज मेटेरियल वर्ल्ड जस्ट लाइक इन ए प्रिजन हाउस, जैसे बंदीशाला होता है ना, जेल में बंदीशाला है। तो हम लोग ये जो भौतिक जगत में है, ये हम लोग कहाँ पे है, हम लोग बंदीशाला में है। इट इज नॉट पॉसिबल दैट ही विल नॉट सिट डाउन एंड ही विल बी ऑनर्ड जस्ट लाइक सन इन लॉ। तो ये तो संभव नहीं है। हम ये जब भौतिक जगत में जब हमने आया, हमको तो काम करना ही पड़ेगा। तो प्रभुपाद यहाँ पे एक चीज बता रहा है, he will honor just like son in law। ये जो son in है, son in law का प्रभुपाद यहाँ पे एक एग्जांपल दिया। जैसे हमारा बंगाली का बात करता है, कोई बेटी को अगर किसी ने घर पे जब शादी दिलाया, तो उसका जो जामात रहता है, तो जामात तो बेटी को लेके चला जाता है ससुरालय। तो कुछ दिन के बाद जब उससे वापस आता है जामात, और बेटी जब घर पे वापस आता है, तो वो जो जामात होता है ना, जामात जब मतलब घर पे वापस आता है अपना घर पे बेटी को लेके, मतलब बेटी का घर पे जब आता है, तो उनको क्या है, जो सब उनका जो रिश्तेदार होता है, कोई भी होता है, उनको कोई काम करने के लिए नहीं देते, बोलते हैं कुछ नहीं काम करने का। उसको घर पे बिठा देता है, घर पे बिठा के मतलब उसको जितना सेवा कर सकता है, क्या खाएगा, आज क्या खाओगे, मतलब 10 आइटम 15 आइटम डिश बनाएगा, क्योंकि अरे जमात आया, मेरा बेटी का जमात आया घर पे, उसके लिए इसको कुछ नहीं करने का। तो प्रभुपाद यहाँ पे वही एग्जाम्पल दे रहा है, मतलब ये भौतिक जगत में जब तुमने जन्म लिया, हाँ, यहाँ पे ऐसा नहीं तुमको जमात के जैसे तुमको बैठना पड़ेगा और तुमको कोई खिलाएगा। तो प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहा है, he will be honored just like son in law। So here is the material world, ये भौतिक जगत है। Who has born, he should not think himself that I am honored guest। तो यहाँ पे प्रभु तो ही कह रहा है,
तुम जब भौतिक जगत में जन्म लिया, ये नहीं सोचो तुम एक दुनिया में जो आया तुम गेस्ट आए, तुमको बैठ के कोई ना कोई खिलाएगा। नो, एवरीवन हैज टू वर्क, सबको काम करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं भौतिक जगत में जन्म लिया मतलब आपको काम करना ही पड़ेगा, यू आर फोर्स टू वर्क। तो दो तरह का प्रकृति है, एक भौतिक जगत और दूसरे है आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत जो है वो भौतिक जगत का अंदर ही है, दैट्स व्हाई इट इज वर्किंग। ये जो भौतिक जगत बना हुआ है ये भौतिक जगत का अंदर ही है आध्यात्मिक जगत। इसी आध्यात्मिक जगत का पावर से ये आज भौतिक जगत चल रहा है। तो अदरवाइज भौतिक जगत का कोई शक्ति नहीं होता है। प्रभुपाद कह रहा है भौतिक जगत का शक्ति नहीं आता है, आध्यात्मिक जगत जो है भौतिक जगत का अंदर है तब जाके ये चल रहा है। तो देयर आर टू टाइप वर्क, दो टाइप का काम होता है। एक तो सॉफ्ट वर्क होता है, दूसरे है हार्ड वर्क है। तो हमने जब कोई ऑफिस में या कोई इंडस्ट्री में काम करता है तो वो क्या हो जाता है, वो हार्ड वर्क होता है। तो उसमें आदमी क्या है, थोड़ा काम करने के बाद हमारा ड्यूटी जैसे 8 घंटा 6 घंटा जो भी है, थोड़ा काम करने के बाद हम लोग बिल्कुल टायर्ड हो जाता है। लेकिन जो भगवान का सेवा करता है दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट वर्क, बट दैट इज ऑल्सो वर्क। वो भी काम है, भगवान का सेवा करता है इसका मतलब नहीं वो काम नहीं, वो भी काम है। उसमें और इसमें अंतर क्या है, उसमें जो भौतिक जगत का काम और भगवान का जो सेवा होता है उसमें अंतर क्या होता है, भगवान के कितने भी आप सेवा कर लेंगे, कितना भी हम सेवा करेंगे तो विल नॉट फील दैट मच टायर्ड। एग्जाम्पल, जैसे कोई आर्टिस्ट स्टेज में जाके 2-4 गाना गा के गाने के बाद कोई आर्टिस्ट है स्टेज में जाके 2-4 गाना के बाद ओ आई एम सो टायर्ड जाता है। लेकिन हम लोग जब बैठ के 16 माला 20 माला कोई भी कंटिन्यू हम लोग करेंगे तो हम लोग को उसमें टायर्ड नहीं होता है, हम लोग उसमें टायर्ड नहीं होता है। हमारा क्या होता है, हमारा और भी एनर्जी बढ़ जाता है। तो दैट इज द डिफरेंस। जैसे अभी हम लोग दूसरा एक बात बोलेंगे, एक एग्जाम्पल है। जैसे देखो आप जन्माष्टमी में हम लोग जन्माष्टमी में भगवान का कृष्ण का जन्माष्टमी में हम लोग क्या करता है, एक दिन जैसे आज हम लोग रात को खा लेते हैं 9 बजे 8-9 बजे, द नेक्स्ट डे हम लोग पूरा दिन उपवास रहता है। फिर कोई मैं भक्तों को देखता है, जैसे हम दुबई में हम देखता था स्पेशली के सूरत माधव प्रभु को, कितना मतलब जन्माष्टमी में सूरत माधव प्रभु कितना मेहनत करता था, सूरत माधव प्रभु सर्वदेव प्रभु। लेकिन उन लोग को फिर भी क्या देखता था, पूरा हाशी मतलब प्रफुल्ल लगता था पूरा। जैसे वही हमारा कहने का मतलब है, हम लोग कितना भी जन्माष्टमी हम लोग पूरा मतलब उपवास रख के इतना सेवा भी करता है कुछ भी, लेकिन हमारा क्या टायर्डनेस आता है, हमारा मन में और भी आनंद होता है। तो वे तो स्पेशली हम क्या करता था, जन्माष्टमी हमको 2-4 साल में 2-3 दफा हमको एक सेवा मिला था, मतलब वो जो अपना फ्रूट सलाद होता है ना, फ्रूट सलाद डिस्ट्रीब्यूट में। तो मैं वहाँ पे क्या 10 बजे में लग जाता था, 10 बजे से कभी 12, 12:30, 1 बजे थे। फिर हमने मतलब हमको कोई टायर्ड ही नहीं लगता, हमको बहुत आनंद आता था। तो वही है, तो हम लोग जो एक भौतिक जगत में क्यों आया, हमारा अविद्या का कारण। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं अविद्या मीन नीसेंस, इग्नोरेंस। व्हाट इज इग्नोरेंस है? तो इग्नोरेंस वही होता है डिजायर, इग्नोरेंस वही है हमारा कामो वासना। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा एकमात्र कर्तव्य है भगवान को प्रेम से सेवा करना। जब हमारा मन में आता है क्यों हम भगवान को सेवा करूं, हम क्यों भगवान को सेवा करूं, आई शेल बिकम कृष्ण, हम खुद भगवान बनने चाहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड अविद्या, मतलब दैट इज इग्नोरेंस। तो हरे कृष्ण। तो यहाँ पे कह रहे कृष्ण भोले जे जन भोगवांछा करे, कृष्ण को भूल के जे भोगवांछा करता है तो दैट इज ऑल्सो अविद्या। कृष्ण बोले जे जन भोगवांछा करे, पीछे से माया तारे झापटिया धरे। तो हम लोग जब कृष्ण को भूल के जो कुछ भी करेंगे तो हमारा क्या है, पीछे से माया हम लोग को कैसे भी ग्रस्त कर लेंगे। तो हम लोग मोहग्रस्त जीव है, हम लोग हमेशा इंद्रियों को सेवा करने चाहता है। भगवान का सेवा ना करके अगर इंद्रियों को सेवा करेंगे तो इंद्रियों को दास बने रहेंगे। तो इस प्रकार बार बार जन्म मृत्यु
चक्र में, तो जब इंद्रियों को तो जन्म मृत्यु चक्र में हम लोग क्या करेंगे, फंस जाएंगे। तो इसीलिए जब तक कोई एक अविद्या को अतिक्रम करके बाहर नहीं निकलता है, तब तक जीवन का जो तीताप दुख है, हम लोग क्या 3 प्रकार, हम लोग के जो भौतिक जगत में जन्म लिया जीव क्या 3 प्रकार का ताप से जल रहा है, वो ताप 3 प्रकार दुख ताप, वो 3 प्रकार दुख क्या है, त्रिताप दुख, आदि दैविक, आदि आत्मातिक, आदि भौतिक। तो आदि दैविक क्या होता है, देवता का दिया हुआ जो प्रदत्त, जैसे प्रकृति का विपत्ति, कोई तूफान आया, कोई बारिश, उसमें भी हम भुग रहा है। आदि आत्मातिक है, अपना ही मन से, अपना ही शरीर से जो कष्ट होता है वही आदि आत्मातिक। जैसे कोई जैसे आजकल हम लोग देख रहा है, हम लोग पूरा सब ऑलमोस्ट सर्दी काशी भूकर में भुग रहा है, दैट इज कॉल्ड आदि आध्यात्मिक। आदि भौतिक कोई जैसे पोषी पक्षी से दिया हुआ है, जैसे है उसको बोलते हैं आदि आध्यात्मिक। जैसे कोई बाहर जा रहा है, कोई सांप काट लिया, तो दैट इज कॉल्ड भौतिक, आदि भौतिक। तो ये कहने का मतलब है, ये जो 3 तापों है, ये 3 तापों से व्यक्ति जलते रहता है। जब तक कोई भगवान का पूर्ण शरण में नहीं आएगा तब तक जलते रहेगा, नहीं तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा और भौतिक जगत का 3 तापों से जलते ही रहेगा। हमारा जो मुख्य आत्मा का धर्म क्या है, भगवतम, भगवान का एकमात्र सेवा करना, इसका कभी नेग्लेक्ट नहीं करना। हम लोग भगवान का सेवक है और भगवान है सेव्य। हम लोग भगवान का सेवक है, भगवान है सेव्य। तो ये जो हम लोग जो भक्ति जो करता है, तो भक्ति का अर्थ ही होता है श्री कृष्ण का साथ हमारा संयोग स्थापन करना और उनका नित्य संगी या पार्षद हिसाब में भगवान के साथ हमारा शाश्वत संपर्क का पूर्ण जागरण करना है। हम लोग जो एक टाइम पे भगवान का साथ वो हम लोग सब भूल गया, उसको पूर्ण जागरण करने के लिए हमारा भगवान क्या करना है, हमारा भगवान का साथ संपर्क जोड़ना है। तो हम लोग जब भक्ति करता है तो हम लोग को एक 3 अंग मतलब 3 उपादान होना चाहिए। क्या क्या, सेवक, सेव्य और सेवा। सेवक मीन सेवा करने के लिए किसी को होना चाहिए। सेव्य मीन जो सेवा ग्रहण करता है, तो सेव्य का साथ संपर्क जोड़ना ही होता है सेवा। सेवा क्या होता है, जैसे हम भगवान के साथ हम सेवा करते हैं तो सेव्य होता है भगवान, क्योंकि मैंने भगवान के साथ जब मतलब सेवा जोड़ देता है, भगवान का कोई कार्य करता है, तो दैट इज कॉल्ड सेवा। तो श्री चैतन्य चरितामृत 142 नंबर श्लोक में बताया, मुद्ध लीला में, एकोने ईश्वर कृष्ण आर्ष वृत्त जारे जैसे नाचाए से तैसे करे नृत्य। इसका मतलब एक ने ईश्वर कृष्ण, एकमात्र श्री कृष्ण ही परम ईश्वर। आर्षवृत्त मतलब हम लोग सब भगवान का सेवक है, हम लोग सब भगवान का नौकर है। जारे जैसे नाचाए से तैसे करे नृत्य, मतलब उनका जब हम लोग तो उनका सेवक है, भगवान हम लोग को जैसे करता है मनुष्य ऐसे ही नृत्य करता है। भगवान हमको जैसे नाचाता है हम भी ऐसे ही नाचता है। तो वही कह रहे, एक ने ईश्वर कृष्ण आर्ष वृत्त जारे जैसे नाचाए से तैसे करे नृत्य। तो हरे कृष्ण। तो मैं यहाँ पे और कुछ थे तो मैं यहाँ पे हरे कृष्ण में विराम देता है, और अगर हमसे कोई कुछ गलती है प्लीज रेक्टिफाई मी। हरे कृष्ण। गोपी मोहन प्रभु दंडवत प्रणाम। और किसी को कुछ ऐड करना है प्लीज ऐड दीजिए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रेम सगा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छा एकदम बहुत अच्छा आपने प्रभुपाद जी के पर्पट को समझाया प्रभु जी, और बहुत सारे पॉइंट आपने टच किया, और ये जो लास्ट वाला पॉइंट भी बहुत अच्छे से आपने ये किया प्रभु जी, वो सेव्य और सेवक, ये तीनों पॉइंट को आपने वो कवर किया प्रभु जी। एंड बहुत बढ़िया आपने ये किया प्रभु जी, इसको कवर किया प्रभुपाद जी के पर्पट को। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रेम सका प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छा क्लास। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि रसगुल्ला, संदेश, मालपुआ, मिष्टी दही, सब पॉइंट्स आपने जैसे बताया ना, जमाई, तो वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें हम लोग सबको इधर काम करना है, लेकिन भगवान का सेवा ये प्रायोरिटी, हम लोग को प्रायोरिटी जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक 84 लाख आना पड़ेगा जमाई बन के। तो हमें जमाई नहीं बनना है, हमें भगवान का दास बनना है, और जल्दी से जल्दी ये 84 लाख योनि से हम लोग गुरु परंपरा भक्तों का संग लेके जल्दी से जल्दी इधर से निकलना है। और प्रभु जी जो अपने लास्ट पॉइंट बताया, जैसे अभी सरोदे गिरधरी प्रभु बताया, बहुत अच्छा, और अपने पूरा जो श्लोका है पूरा कवर किया। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। जय श्री प्रभुपाद। नमस्कार। नमस्कार। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा दादा, बहुत अच्छा क्लास था। और जैसे अपना सत्यराज प्रभु ने बताया, जो जमात वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा था। तो हम लोग जितने भी शादीशुदा लोग हैं वो लोग समझ सकते हैं इस बात को कि जब जमाई जब अपने ससुराल जाता है तो उसको कितना अवभगत होता है। तो वैसे हम लोग अगर यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में रहेंगे तो कभी हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग को। तो वी हैव टू वर्क हार्ड। तो ये जो था एग्जाम्पल बहुत अच्छा था। थैंक यू प्रेम सखा प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रेम से का गौर प्रभु, दंड प्रणाम। प्रभु मुझे खाली ना ये दामाद का जस्ट मतलब आप वापस मुझे मतलब हमको एक बार बता सकते हो, मतलब हम लोग यहाँ पे मतलब मुझे वही एक क्लैरिफिकेशन था, दामाद की तरह यहाँ पे रुक रहे हैं या मतलब समझा नहीं प्रभु, जस्ट वापस एक बार मतलब हरे कृष्णा आप बता सकते। समझ गया प्रभु। मतलब यहाँ पे मतलब हमारा यहाँ पे जो एक्चुअली प्रभु जो ये एग्जाम्पल दिया, एक्चुअली ये बंगाली का इसमें क्या है, मतलब हमारा घर पे समझो हमारा कोई समझो बहन को शादी हो रहा है, तो बहन जब शादी होने के बाद जब ससुराल का घर पे जब हमारा बहन निकल जाता है, तो फिर बहन कुछ दिन के बाद हमारा घर पे आता है, जामात के साथ आता है। तो हमारा घर पे जब जामात आता है ना, मतलब हमारा समझो हमारा बहन का जब हस्बैंड आता है, तो उसको क्या है, मतलब पूजा करके, जैसे उसको पूजा करने जाता है, मतलब उसको काम करने नहीं देता है, उसको क्या क्या खिलाना चाहता है, ये आइटम 10 आइटम 15 आइटम करके उसको, मतलब हम लोग तो यूजुअली 3 टाइम खाता है ना, उसको जैसे लगता है जमाई जब आता है उसको 10 टाइम खाना खिलाना पड़ेगा, नया नया चीज बनाएगा, नया नया डिश बनाएगा। तो प्रभुपाद यहाँ पे समझना चाहता है, हम लोग जब ये भौतिक जगत में आया है तो हमको तो काम तो जरूर ही करना पड़ेगा, मेहनत उठाना ही पड़ेगा हमको। कोई ये भौतिक जगत में जब आया ये जमात का जैसे कोई सेवा नहीं करेगा। हम जब जन्म लिया ये भौतिक जगत में, हमको तो काम करना ही पड़ेगा। तो प्रभुपाद वही समझा रहा है, जो जमात जब घर पे आता है, जमात को जैसे सब सेवा करता है, तो तुमको जब भौतिक जगत में मतलब जन्म लिया तुम्हारा, तो तुमको ऐसा कोई, तुम ऐसा नहीं सोचो तुमको जमात का जैसे बिठा के सब खिलाएगा। तो प्रभुपाद वही एग्जाम्पल दे रहा था। हरे कृष्ण। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। ओके, तो वही तो हमको ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। यस यस ब्रो, थैंक यू ब्रो। अच्छा, थैंक यू फॉर द, मतलब अभी समझ में आया एकदम अच्छी तरह से। हाँ प्रभु, हम लोग कभी कभी राजा की तरह हम लोग सोचते हैं, लेकिन सही में थैंक यू ब्रो, बहुत अच्छा क्लास था। हरि बोल, दंडवत दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी और माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, आपने इतना अच्छा बताया प्रभु जी। और आपने प्रवचन में जैसे वो एक पॉइंट पे आपने बताया कि
जैसे हम भगवान का नाम, कोई गायक होता है वो गा के थोड़ा टाइम गा के थक जाता है वो, लेकिन जब भी हम भगवान का नाम जप करते हैं या भगवान की सेवा करते हैं तो उसमें हमें और उत्साह बढ़ता है, और उसमें जैसे और ये करते हैं, और उसमें जैसे आपने बताया तो वो बहुत ही प्रेरणादायक है। सर्वदेव गिरधारी प्रभु सूरत माधव प्रभु जी का जो जन्माष्टमी का सेवा था प्रभु जी, तो रात को 3:30 बजे तक भी उन्होंने मतलब सर्वदेव प्रभु को तो देखा है मैंने भी कि उन्होंने इतना अच्छा मतलब पूरा वो हिंदी हॉल से पूरा 607 में पूरा करके फिर दूसरे दिन वापस जॉब पे जाना। तो ये प्रभु जी थैंक यू, बहुत अच्छा आपने ये इसके बारे में बताया। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। बात सही है प्रभु, जो हम लोग एक साथ में जब बैठ के कितना भी चैंटिंग करो मतलब भगवतम पूर्वक, हम लोग को क्या है मतलब ये नहीं आता, वी डोंट फील द टायर्डनेस। तो अभी जैसे कोई मतलब भौतिक जगत का कोई किताब पढ़ लो, नहीं तो कोई फिल्म में बैठेंगे देखने के लिए, तो हम लोग को क्या है थोड़ा नींद आ जाता है, टायर्डनेस आता है। लेकिन हम लोग जब बैठ के जब एक साथ में भगवतम पढ़ता है, एक साथ में बैठ के चैंटिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है हमारा जो अंदर से एनर्जी और भी बढ़ते जाता है प्रभु। थैंक यू प्रभु। ठाकुर प्लीज आप थोड़ा कुछ बताइए ठाकुर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था। और आपने मतलब आज का क्लास के अंदर से मैं एक तो नया शब्द सीखा, मैंने पहले कभी सुना नहीं था वो शब्द, मगर जब भी आपने पूरे क्लास के अंदर बताया तो वो शब्द मेरे एक जो मेरा डिक्शनरी के अंदर एक ऐड हो गया, वो था बंदीशाला। हम लोगों ने कारागर सुना है, जो अभी फोटो के अंदर दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट पे दिखाई दे रहा है, तो वो कारागर तो सुना है, मगर हम लोग हमेशा जेल यूज करते हैं। मगर ये बंदीशाला वर्ड जो बहुत अच्छा लगा मुझे, जो आपने क्लास में यूज किया, तो थैंक यू फॉर दैट। और क्लास बहुत बहुत अच्छा था। और जो आपने इसमें जो उदाहरण दिए हैं, जो दामाद का उदाहरण दिया है, उसके बाद में कारागर वाला जो उदाहरण, जो ये जो बंदीशाला वाला उदाहरण दिया है, और जो ये एक्सप्लेन किया, और सेवा के अंदर हम लोग थकते नहीं। तो अगर एक छोटा सा रियलाइजेशन ये भी है कि कभी भी हम लोग कोई पिक्चर देखते हैं, जैसे भी आपने बताया 3 घंटे का पिक्चर देखें, 2.5 घंटे का पिक्चर देखने के बाद में बोलते हैं अरे छोड़ यार, बेकार टाइम बर्बाद किया, टाइम वेस्ट किया खामखा। इसे ये तो पता जानते हुए कि भाई ये टाइम वेस्ट ही है, पिक्चर देखना टाइम वेस्ट है, मगर उसके बाद में हम लोग लालायित होके जाके पिक्चर देखते हैं, 2.5 घंटे के बाद में अरे ये बेकार है, ये तो मुझे पता था यार, ऐसे ही होना था, फिर टाइम वेस्ट हो गया। मगर सेम टाइम पे भले ही ये एक भौतिक उदाहरण है, मगर अगर जब ये हम रामायण और महाभारत की सीरियल देखते थे जो टीवी पे आती थी, उसको जिस तरह से भी पेश किया गया था, जिस तरह से भी हमारे समक्ष रखा गया था, मगर उसके बाद भी जो सीरियल खत्म होता था तभी भी हम बोलते थे इसके बाद आगे क्या होगा, राम जी मतलब अभी क्या करेंगे, या कृष्ण ने अभी ऐसा किया, इसके बाद में कृष्ण अभी क्या कहेंगे। हम लोग जानते थे कि आगे क्या होना है, उसके बाद भी हम लोग इतने उत्सुक रहते थे कि इन लोग एक साथ में पूरी जो है ना, पूरा रामायण और महाभारत एक साथ में सब सीरियल क्यों नहीं दिखा देते। तो वो भी भगवान के साथ में कनेक्टेड था, इसके लिए हम लोग उन सीरियल्स के अंदर भी हमको इतनी उत्सुकता, इतनी जिसको बोलते हैं ना उत्कंठा होती थी देखने के लिए, कि हम लोग हमेशा वो लालायित रहते थे क्योंकि भगवान के साथ में रिलेटेड वो टॉपिक्स थे। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। बात से बचपन का याद आता है, आपने जब बात बताया अभी, जब हम लोग रामायण देखता था हर संडे को होता था, मतलब हम किधर भी हम निकल जाता था, लेकिन आज रामायण है, रामायण देखेगा, इतना इंटरेस्ट आता था। लेकिन ये जो बात है, हम लोग तो टाइम को बिता दिया, टाइम को फालतू वेस्ट किया, जब ये सिनेमा देख के फालतू चीज गोसिपिंग करके, प्रजल्प करके। अभी मैं वही सोचता है, अभी हम लोग कितना फिल्म देखता था, अगर फिल्म में अगर जाएंगे एक ही स्टोरी है, मतलब दोबारा इसको मतलब कन्वर्ट करके, लेकिन चीज एक ही होता है प्रभु। तो लेकिन ये जो हम लोग जब रामायण देखता था, कृष्ण का सीरियल हम लोग देखता था, तो हम लोग बहुत इंटरेस्ट होता था उसमें, इसके बाद क्या होगा, बहुत इंटरेस्ट होता था। वही है प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू।